हेलो एवरीवन, करकान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सोल्व करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव सीरीज के प्रैक्टिस सेट 10। यदि आपने अब तक पिछले प्रैक्टिस सेट 1 to 9 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर आप इसके पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 10 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 1, इन केस ऑफ ओवर रेनफोर्स्ड बीम द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज द सेम एज दैट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। No, that is false. The moment of resistance of a balanced reinforced concrete beam is based on a stress in what? That is a stress steel as well as concrete in both. The ratio of maximum hoop stress in a circular rotating disc having a pinhole at the center to the maximum hoop stress in a solid disc. तो आपका इसमें क्या होता है, दैट इज बी। देन मैक्सिमम हुप स्ट्रेस किस तरह से लिखते हैं और रेडियल स्ट्रेस, तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। द मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस इन हॉलो सर्कुलर रोटेटिंग डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज एट, कहां पे, दैट इज इनर और आइदर विच प्लेस। तो यहां पे हमारा क्या होगा, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन रेडियस पे। यहां पे आपका क्या होता है, दैट इज सपोज सिग्मा आर, दैट इज रेडियल स्ट्रेस है ना, इक्वल टू रो इनटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू दैट इज 3 प्लस म्यू इनटू r0, दैट मीन्स आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का होल स्क्वायर। तो दैट इज मैक्सिमम एट विच, एट r इक्वल टू root under r0 into ri, that is geometric mean radius. Then a thin ring of radius r rotating about its axis an angular speed of omega radian per second. If rho is the density of the material of the ring, the circumferential stress developed by, that is rho into omega square into r square, that is circumferential scale. The theory of curved beam was developed by Winkler-Weich. The theory of curved beam is developed by Winkler-Weich. In a curved beam, the variation of bending stress is, है ना, the variation of bending stress is, that is hyperbolic in nature. The centroidal axis of curved beam is does not coincide with the neutral axis. The most suitable cross section of a crane hook is, that is it is used in industry. There are different type of cross section, that is either circular, triangular, rectangular and trapezoidal. But trapezoidal cross section hooks are mainly used as most commonly used. It is able to absorb. Why should you use more commonly? That is absorb at more vertical load and deflection. So it is ensure that the safety purpose. It is also used, that is which type of section, that is trapezoidal. Why should use? It is absorb that more vertical load as well as deflection of the crane hook. Okay, so next, the maximum stress in a ring under tensile tension occurs along the line of action of the load. Yes, line of the action of load S. Then Tresca-Yield criterion refers to, that is maximum shear stress. Tresca theory क्या है, Tresca or either Guest theory, that is called maximum shear stress theory. Okay, then और मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी किसके लिए यूज करते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए। मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी
is used as a brittle material, but maximum shear stress theory is used for the ductile material. The maximum principal strain, that is principal strain किसके लिए करते हैं? That is सेंट विनेंट theory, है ना? प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी इज नोन एज सेंट विनेंट theory. The material which regain its original position on the removal of the external load, that is called elastic material, है ना? That is elastic in nature. जब हम क्या है, when you have to remove that the applied load, then it's regain that the original shape and size. Okay, so that property of material is called elastic property of that material. The material which does retain its original position on the removal of the external load, यदि if you have removed, यदि आपने लोड रिमूव कर लिया, फिर से आपका वही डिफॉर्म पोजीशन ही रह गई, है ना? तो वो क्या कहलाता है? दैट इज प्लास्टिक मटेरियल. Which of the following material has maximum ductility? तो अभी इस केस में आपका क्या है? सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसका है? माइल्ड स्टील. ऐसे आपका यदि बनाया जाए तो ये क्या होता है? सबसे ज्यादा माइल्ड स्टील. देन माइल्ड स्टील के बाद क्या आता है? कॉपर. देन कॉपर के बाद आपका एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के बाद निकेल. उसके बाद आपका जिंक. उसके बाद टीन. तो सबसे कम डक्टिलिटी किसका होता है? टीन का. और सबसे मैक्सिमम माइल्ड स्टील का. When a material can be hammered or rolled into a thin sheet, then it is called as malleable material. यदि हम उसको thin roll sheet में करते हैं तो that is property known as malleability. That is malleable material. The breaking stress, है ना? That is breaking stress is less than the ultimate stress. Breaking stress क्या होती है? Ultimate stress से कम होती है. The stress at which extension of material takes place more quickly as compared to increase in load. यदि हम लोड को बढ़ा रहे हैं और सडनली मटेरियल का एक्सटेंशन हो रहा है तो at which property due to which property, that means that is yielding point. यदि yield point के बाद हम देखेंगे at the yield point, है ना? तो breaking stress as the stress material increase more quickly then the load increase is called yield point. The stress develop in a material without any permanent set, है ना? Without any permanent set, that is called elastic limit. Elastic limit तक क्या होती है? स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर होते हैं, that is directly proportional. तो उसमें हमारा कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आती है. When a material is loaded within elastic limit, है ना? The material will regain its shape and size when load is removed. Yes, क्योंकि within elastic limit में क्या है? आपका elasticity property मैक्सिमम है. तो जब इलास्टिक इन नेचर है तो वो क्या होगा? जैसे हम उससे लोड रिमूव करेंगे तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी. The ratio of largest load in a test to the original cross sectional area of the test specimen is, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि लार्जेस्ट लोड है तो डेट इज अल्टीमेट स्ट्रेस. मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस होता है कोई भी मटेरियल का. द माइल्ड स्टील फॉर्म्स नेक बिफोर इट ब्रेक. द नेक फॉर्मेशन स्टार्ट कहां पे आपका नेक फॉर्मेशन होगा? तो नेक फॉर्मेशन जो होती है दैट इज एट द अल्टीमेट स्ट्रेन. इन माइल्ड स्टील नेक फॉर्मेशन स्टार्ट एट द पॉइंट ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन when subjected to tensile test. Okay, the tensile test is carried out on which type of material? Tensile test हम किस टाइप के मटेरियल पे करते हैं? तो that is ductile मटेरियल पे करते हैं. The compression test is carried out on which type of material? That is brittle मटेरियल पे हम क्या करते हैं? कंप्रेशन टेस्ट करते हैं. In tensile strength of ductile material is, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, है ना? तो दैट मीन्स ग्रेटर देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
इट्स, है ना। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटल मटेरियल इज ग्रेटर देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है टेंसाइल से, बट डक्टाइल मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव से ज्यादा होता है। A tensile test is performed on mild steel round bar. Its diameter after fracture will be, तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे फ्रैक्चर होगा तो नेक फॉर्मेशन होगी, और नेक फॉर्मेशन जब होंगे तो उस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, राउंड बार जो है उसका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल, है ना, द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल increases with increase in percentage reduction in area of the specimen under tensile strength, that is increase होता है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंशन टेस्ट में इंक्रीज हो जाता है। द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल with decrease in percentage elongation of a specimen under tensile test। अभी देखिए ऊपर पूछा गया द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल increases with the increase in reduction of area, but यहाँ पे बोल रहा है the ductility of material with decrease in percentage elongation of the, है ना। अब वहां पे एरिया हो रहा था क्या, इंक्रीज हो रहा है, तो जब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, लेंथ तो घटेगी ही, है ना। जब लेंथ घटेगी तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, है ना। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या डिफाइन करते हैं, तो अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर इज सेफ्टी इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी, एस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी। इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इज कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड अकर्स अलोंग द ऑब्लिक प्लेन, 45 डिग्री पे करता है ना, तो दैट इज ऑब्लिक प्लेन हो जाएगी, दैट इज 34 का बी। फटिग टेस्ट इज कैरिड आउट 4, है ना। फटिग टेस्ट क्या होता है, दैट इज रिपीटेटिव लोड लगेगी, तो इसमें पूछ वही बोल रहा है, स्ट्रेस वायरिंग बिटवीन टू लिमिट ऑफ इक्वल वैल्यू बट इन अपोजिट साइन, अनइक्वल वैल्यू बट अपोजिट साइन, अनइक्वल, है ना, वायरिंग टू लिमिट ऑफ अनइक्वल वैल्यू बट सेम साइन। तो सभी केस में हमारा क्या है, रिपीटेटिव हो रही है, तो इसलिए हमें रिपीटेड स्ट्रेस है, दैट मीन्स फटिग टेस्ट होगी। ए सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन of a steel having original diameter 12.8 mm in tensile test to fracture found engineering fracture strength, है ना, engineering fracture strength that is 460 megapascal. If its cross sectional diameter at the fracture is 10.7, that is reduce हो गई, then true stress is, तो true stress क्या होगा, that is true stress की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगी, that is सिग्मा, है ना, सिग्मा ट्रू इक्वल टू सिग्मा फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इनटू क्या हो गई, इनिशियल एरिया अपॉन फाइनल एरिया। तो ये क्या है हमें, दैट इज 460 मेगापास्कल, एरिया तो पाई बाई 4 डी आई, दैट मीन्स इनिशियल डायमीटर दैट इज 12.8 डिवाइडेड बाई फाइनल डायमीटर दैट इज 10.7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 460 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि तो ये हो जाएगी 460 इंटू 1.44 अप्रोक्सीमेटली, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 मेगा पास्कल, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 37, a copper piece originally 305 long is pulled in tension with a stress 276 megapascal. The deformation is entirely elastic and modulus of elasticity E is given as 110 gigapascal. The resultant elongation will be, तो आपका elongation क्या होता है, change in length, that is delta L equal to PL upon AE। तो P by A को क्या बोलेंगे, स्ट्रेस अपॉन L इंटू E। तो आपको दिया है स्ट्रेस गिवन है दैट इज 276 मेगापास्कल, लेंथ इज गिवन एज दैट इज 305 mm,
दैट इज गिवन एज 110 गीगा पास्कल, तो इसको मेगा पास्कल में 10⁻3। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज 276 इंटू 10⁻³ इंटू 2.77, दैट मीन्स 0.765, that is approximately equal to 0.77. A 10 mm diameter bar steel elastic modulus is 200 into 10⁹ Pascal, that means gigapascal में, is subjected to 5,000 load, is just behind the yield. The elastic recovery of strain would occur, the removal of load will be, है ना। तो पूछ रहा है आपका कि इसमें आपका इलास्टिक मॉडुलस है ना, आपका इलास्टिक क्या होगा, है ना। जो आपका पूछ रहा है कि स्ट्रेस जो है आपका कितना होगा, इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी जब की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या है कि सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू, तो ये आपका क्या है सर्कुलर डायमीटर है, तो डेट मीन्स क्या होगी 4p/π इंटू डी स्क्वायर। तो क्या है आपका 4 इंटू 5,000/π इंटू डी इक्वल टू 10⁻10 स्क्वायर, है ना। तो इस केस में आपका क्या है स्ट्रेस जो ये डेवलप हो रही है दैट इज 636.94 पर पूछा क्या है इलास्टिक रिकवरी ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी मॉडुलस, है ना। तो दैट इज 636.94 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻3, तो ये आपका आ जाएगा 3.18 इंटू 10⁻³ है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन modulus of rigidity of elastic material is found to be 38.5% of the value of Young's modulus. Okay, then Poisson's ratio of mu is, है ना। तो इसमें क्या है कि आपका G जो है आपका कितना है 0.385 टाइम्स ऑफ E। तो इस केस में हमें पूछा क्या जा रहा है कि आपका पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, तो हमने E इक्वल टू 2G इंटू 1+μ, तो G की जगह हम क्या है इसको इंसर्ट कर देंगे, तो G की जगह जब हम इंसर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा E इक्वल टू 0.77 E इंटू 1.μ, दैट मीन्स म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू इक्वल टू 1/0.77 -1, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 0.297, दैट इज 0.3। फॉर ए गिवन मटेरियल E इक्वल टू 2G, है ना, E इक्वल टू 2G, देन बल्क मॉडुलस K इज, तो E इक्वल टू 2G इंटू 1+μ, तो यहाँ पे क्या है E इक्वल टू 2G दिया है, दैट इज 2G इक्वल टू 2G इंटू 1+μ, यहाँ से कैंसिल आउट, तो 1+μ इक्वल टू म्यू, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गई 0 है, तो दैट मीन्स सेकेंड रिलेशन E इक्वल टू 3K इंटू 1 - 2μ, म्यू की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 0, दैट इज E इक्वल टू 3K, तो पूछा क्या गया है K इक्वल टू दैट इज E/3, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। If a material has identical property in all direction, it is said to be, इसको क्या बोलते हैं, that is isotropic material बोलते हैं। If a steel member is subjected to temperature rise and likely to expand freely, it develop, यदि हम उसको freely expand होने देंगे तो स्ट्रेस क्यों डेवलप होगा, नहीं होगा, दैट इज नो स्ट्रेस। स्ट्रेस कब डेवलप होगी, रेसिस्टिंग, दैट मीन्स हम उसको रिस्ट्रेन करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा स्ट्रेस डेवलप होगी। देन द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड E एंड म्यू, तो E इक्वल टू क्या होगा 2G इंटू 1+μ, E इक्वल टू 2G इंटू 1+μ। द ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन रिलेशनशिप, तो
तो क्या है ई टी इक्वल टू 1 प्लस ln इंटू 1 प्लस ए. देन क्वेश्चन नंबर 45. A metal sphere of diameter d is subjected to a uniform increase in temperature by delta t. E, mu and alpha are the Young's modulus, Poisson's ratio and coefficient of thermal expansion. If ball is free to expand, the hydrostatic stress develop within the ball due to temperature change. अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, if the ball is free to expand, जब freely expand हो रही है तो इसमें constraint नहीं है, that means क्या होगा, thermal stress due to temperature change क्या होगी, 0. Then question number 46. A rod length of 2 meter and diameter 50 mm elongated by 5 mm when axial load 400 kilonewton, the modulus of elasticity of material of the rod will be, है ना. तो modulus of elasticity of the rod material हमको निकालना है. तो यहाँ पे हमें क्या है, आपको गिवन है डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई. इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एल अपॉन ई. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन डेल्टा. तो सिग्मा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे लोड 400 इंटू 10³ इंटू लेंथ 2 इंटू 100,000 डिवाइडेड बाई एरिया, है ना. तो एरिया क्या है, आपको डेल पहले 5 mm इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर. तो आप इसे सोल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स जो है आपको 82 गीगा पास्कल आएगा. देन क्वेश्चन नंबर 27. ए कॉपर रॉड, अभी देखिए ओरिजिनली 305 लॉन्ग मी पुल्ड एंड द स्ट्रेस इज 276. इफ द इलास्टिसिटी इज 110 gigapascal, the deformation is entirely elastic, the elongation is. तो elongation आपका इसमें क्या होगा, तो अभी हमने ऑलरेडी इसको सोल्व किया है. तो डेल्टा इक्वल टू क्या है, पी एल अपॉन ए ई. तो पी अपॉन ए क्या है, स्ट्रेस में दैट इज 276 इंटू आपका 305 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10⁻3. तो ये जो आपका आ रहा था 0.77, तो नियरली अप्रॉक्स क्या है, दैट इज 0.8 mm. Which mechanical property gets affected in alloy when it is roll edge condition, that is the lower the hardness of that material. After which point of a stress strain diagram does metal cutting start, that is fracture point. फ्रैक्चर पॉइंट के बाद से क्या होता है, मेटल कटिंग स्टार्ट हो जाता है. ए ब्लॉक इन डायमेंशन ऑफ अपर डायमेंशन इज दिस. तो ये आपका क्या है, इस टाइप का आपको ब्लॉक है, दैट इज 3 डायमेंशन. आपको एक ब्लॉक यहां पे गिवन है ना, ये आपका ब्लॉक गिवन है जिसका डायमेंशन आपको क्या है 100, है ना. ये आपको क्या है, दैट इज 100. ये भी आपका क्या है, दैट इज 100, बट दिस वन इज 10 mm एंड टेंजेंशियल फोर्स ऑन अपर साइड. तो यहां पे हमें क्या है, एक टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, दैट इज कितना, 10 किलो न्यूटन. द ब्लॉक इज डिस्प्लेस बाय द 1 mm विद द लोअर सरफेस. ये जो लोअर सरफेस है उसके विथ रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, 1 mm डिस्प्लेस हो रही है. तो व्हाट इज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज पी अपॉन एरिया. तो आपको लोड जो है 100 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एरिया. एरिया क्या है 100 इंटू 100, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, दैट इज 1 megapascal. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. Then a steel rod 2 mm and 20 into 20 mm cross section is subjected to tensile force, and what is the elongation of the rod? तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्या है, फोर्स, दैट इज 40 इंटू 10⁻3, P इंटू L दैट इज 2 इंटू 10⁻3
इंटू AE, एरिया क्या होगा 20 इंटू 20 एंड 200 इंटू 10 टू पावर 3, ये कैंसिल आउट हो गई। अब ये कैंसिल तो ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल, दैट इज 1 mm. The temperature stress are set up in material when it expand and contraction is restrained. जब हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस कब होगा, जब हम उसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को रिस्ट्रेंड करेंगे, है ना। यदि हम फ्रीली उसको एक्सपैंड होने देंगे देन डज नॉट इंड्यूस द टेम्परेचर स्ट्रेस। ए सॉलिड क्यूब फेस सिमिलर इक्वल नॉर्मल टू ऑन फेसेस रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन ऑन एनी 3 एक्सिस विल बी। तो आपका इस पे क्या होगा, तो आपका देखिए इसमें आपको क्या है एप्सिलॉन भी इक्वल टू आपको क्या होता है दैट इज 3 सिग्मा E अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। तो बोल रहा है कि आपका रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस जब 3 रहेगी, तो लीनियर स्ट्रेस आपको 3 है, तो उस केस में आपका स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन E। तो इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो एप्सिलॉन भी जो है हमारा ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन भी इज 3 टाइम्स दैट इज C. If a body is stressed within its elastic limit, the lateral strain bears a constant ratio to linear strain. The constant is known as, यहाँ पे क्या है strain है, that means change in, है ना, that means lateral upon linear. तो आपका क्या है that is Poisson's ratio. For a given materials, Young's modulus is 200 and modulus of rigidity is 80, then Poisson's ratio is, है ना। तो Poisson's ratio आपका इसमें क्या होगा, तो आपका E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। तो E इक्वल टू क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज 80 इक्वल टू आपको मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस हमारा जो है 200 है, 200 एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 दैट इज 160 इंटू 1 प्लस म्यू, है ना। 80 को डबल कर दिए, यहां से कैंसिल आउट हो गई, दैट मीन्स म्यू इक्वल टू कितना आ गया दैट इज 0.25। अंडर यूनिएक्सियल स्ट्रेन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस टू यूनिएक्सियल स्ट्रेन इज, है ना। तो 56 में क्या है दैट इज हाफ। A 200 into 100 into 50 steel block subjected to hydrostatic pressure and Young's modulus and Poisson's ratio of material as this, the what is change in volume। तो आपका अभी देखिए हमने स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन E इंटू 1 माइनस 2 म्यू, बट हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा V दैट मीन्स 3 सिग्मा V अपॉन E इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 15 इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगी 200, मतलब 5 दूनी 10, तो 2 4 6 दैट इज 10 टू पावर 6 अपॉन ई क्या है हमारा दैट इज 200 गीगा पास्कल, दैट इज 200 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू दैट इज 3 6 दैट इज 0.4। तो यहां से ये क्या हो जाएगा दैट इज 3, है ना। 3 में ये 2 खत्म हो गया दैट इज ओनली 10 बच गई, तो 2 बचे 10, है ना। तो 5 का 20 30, है ना, 30 या 90 दैट इज 90 mm3, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ मटेरियल इज हीटेड अप इट्स इलास्टिक मॉडुलस डिक्रीजेज। यदि हम मटेरियल को हीट करेंगे तो उसका इलास्टिक मॉडुलस डिक्रीज होगा, बिकॉज मटेरियल क्या होगी सॉफ्टनिंग में चले जाएगी, तो उस केस में हमारा डिक्रीज होता है। द वैल्यू ऑफ पॉइजनस रेशियो ऑफ स्टील व्हाट दैट इज रेंज ऑफ 0.25 to 0.3। तो इसमें क्या है आप स्टेनलेस स्टील, यदि आप स्टील की बात किए तो 0.25 to 2.3 होता है, और यदि यहाँ पे हमारा कास्ट आयरन रहता है ना,
कास्ट आयरन का क्या होता है, दैट इज 0.21 से 0.26, और यदि हम कॉर्क की बात करेंगे है ना, तो कॉर्क का 0, रबर का यदि हम बात करेंगे है ना, तो रबर का क्या होता है 0.5 है ना। डिटर्मिनेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल फॉर शॉक लोड एप्लीकेशन इज, दैट इज लो टफनेस। The ability of material to absorb energy before fracture is known as toughness, है ना। जब बिफोर फ्रैक्चर जितना एनर्जी ऑब्जर्व होता है उसको टफनेस बोलते हैं। फॉर डक्टाइल मटेरियल लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय मटेरियल बिफोर ब्रेकिंग इज नोन एज, है ना। तो इस केस में हमारा क्या बोलते हैं उसको, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बिफोर ब्रेकिंग। For isotropic, homogeneous and linearly elastic material which obey Hooke's law, the number of elastic constant is number of independent, that is E and G, है ना, there are two. A 30 mm diameter subjected to 60 kilo Newton, the measured extension gauge length is 202.09 and the diameter is this. The find out Poisson's ratio, तो Poisson's ratio क्या होगा, lateral upon linear, that is delta D by D अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो डेल्टा D क्या है, दैट इज आपको चेंज इन डायमीटर, तो इसको क्या करेंगे 0.0039 डिवाइडेड बाई कितना है 30 इंटू ये अभी आपको क्या हो जाएगा लेंथ में 200 अपॉन 0.09। इसे यदि आप सोल्व करेंगे है ना, तो ये आपको क्या होगा ये जो आएगा 0.2888, दैट इज इसको 0.289। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए पॉइजन्स रेशियो इज, है ना। तो अब पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज G अपॉन E। तो G अपॉन E इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 1 प्लस म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या है 0.5 दिया है, दैट मीन्स 2 इंटू 1.25, दैट इज 10/25, है ना। तो हाँ 2.5, तो 10/25, तो क्या होगा 25 होगा 100, दैट इज 0.4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए प्रिस्मेटिक वार हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। प्रिस्मेटिक बार क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसमें मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम अल्टीमेट और ये सब नहीं, दैट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। फेलियर क्राइटेरियन फॉर डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ड ऑन। अब हमारा यदि डक्टाइल मटेरियल है तो उस केस में आपका जो मटेरियल फेलियर की कंडीशन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो आपका यील्ड स्ट्रेंथ पे आपका फेलियर क्राइटेरियन। इन ए बॉडी थर्मल स्ट्रेस induced because the existence of temperature gradient, क्योंकि आपका सिग्मा TH थर्मल स्ट्रेस क्या होता है E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T, दैट इज डेल्टा T इज व्हाट, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर में चेंज हो रही है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर इक्वल अप टू, आपको कहां तक इक्वल होता है, यदि आपका दोनों इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेन की बात करें तो अभी आपका कहां पे, दैट इज यील्ड पॉइंट पे, यील्ड पॉइंट अप टू यील्ड पॉइंट इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व आर इक्वल। टू टेपरिंग बार ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू a tensile load P, the length of both are same. The larger diameter of bar is D and diameter of A is a smaller end is D by 2 and B is D by 3. What is the ratio of elongation? तो इसमें कुछ नहीं, आपका यदि टेपरिंग बार है तो आपका उसका डिफ्लेक्शन क्या होता है 4 इंटू पी इंटू एल, दैट इज पी अप्लाइड लोड इंटू पाई इंटू ई इंटू D1 इंटू D2। तो इस केस में आपका देखिए पहला जो है लार्जर डायमीटर D1 कैपिटल D है, तो डेल्टा ए की बात करें पहले बीम की तो 4PL अपॉन पाई ई डी एंड स्मॉलर डायमीटर D by 2, दैट इज ये क्या होगा 8PL अपॉन पाई ई इंटू
कैपिटल डी का होल स्क्वायर। जब हम डेल्टा बी की बात करेंगे तो उस केस में क्या है, डी बाई 3 हो गई, तो 4pl अपॉन पाई ई डी इंटू डी बाई 3 दैट इज 12pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी पूछा गया है। दैट मीन्स क्या हो जाएगी 8 अपॉन 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। Poisson's ratio is 0. That means what? The material is rigid. Material is perfectly plastic. There is no longitudinal strain in material. Longitudinal strain is materially infinite. तो देखिए आपका Poisson's ratio है ना, म्यू इक्वल टू क्या होती है आपका लैटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लैटरल है ना, लैटरल अपॉन लैटरल स्ट्रेन है ना, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो अब ये क्या है लीनियर, और इसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो ये 0 हो, तो 0 होने के लिए आइदर लैटरल स्ट्रेन को 0 होना पड़ेगा, तो जो कि हमारा दिया नहीं है। तो दूसरा क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यदि ये इन्फिनिटी हो जाए दैट मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज टेंस इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये आपको बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2 बार पूछा गया है। फेलियर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड फटीग व्हेन इट फॉल्स बिलो दैट द यील्ड पॉइंट है ना। जब फटीग होगी तो बिलो दैट द यील्ड पॉइंट, सॉरी टिक ये गलत, बिलो दैट द आपका बिलो क्या होगा यील्ड पॉइंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपका क्या है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिलो दैट द यील्ड पॉइंट। A 10 mm diameter aluminum alloy test bar subjected to load 100 Newton. The diameter of bar is 8 mm. The true strain is है ना। तो ट्रू स्ट्रेन आपका क्या होता है कि आपका ट्रू स्ट्रेन यदि निकालेंगे तो उस केस में हमारा क्या होता है कि आपका एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू ln इक्वल टू A0 अपॉन AF। दैट मीन्स 2 टाइम्स इंटू ln D0 अपॉन D initial, that means 2 upon ln 10 upon 8। तो ये आपका जो है आ जाएगा 0.445, that is option D is correct। Then true strain for a steel bar which is double its length by tension। तो यदि हमारा डबल है तो ये आपका ट्रू स्ट्रेन क्या होता है एप्सिलॉन इंटू ln इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन, यदि डबल हो गया तो ये स्ट्रेन क्या होगी 1 हो जाएगी, दैट इज ln2 क्या होता है दैट इज 0.693। when a body is subjected to a stress in all direction, the body is said to be undergone as volumetric strain। The linearly elastic, isometric and homogeneous material, the number of elastic constants required to related stress and strain are that is 2। Then the modulus of rigidity to bulk modulus is है ना। तो modulus of rigidity to bulk modulus का हम बात कर रहे हैं है ना। तो आपका क्या होगा that is G upon modulus of rigidity E upon bulk modulus that is K। modulus of rigidity that is G upon K। तो E इक्वल टू क्या होता है 3G है ना। यहां से आप क्या करेंगे रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज G एड टू वर्क मॉडुलस दैट इज K। तो आप इसको क्या करेंगे E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू है ना। और यहां पे E इक्वल टू क्या हो जाता है 3K है ना, दैट इज 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू 0.5, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 50 दैट इज 1.5 K इक्वल टू 1.25 दैट इज 2.5 इंटू G। तो पूछा है G अपॉन K है ना, G अपॉन K दैट मीन्स 1.5 अपॉन
2.5, तो 5 3 15, 5 25, दैट इज 3/5. ऑप्शन सी इज करेक्ट. A test used to determine the behavior of material when subjected to high rate of loading is known as, है ना. यदि हम high rated of loading करेंगे, that is impact test. A strain in direction at right angle to the direction of applied force is known as, है ना. यदि हम ये करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? lateral strain. Stress strain are tensor of second order. ये भी आपको क्या है, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर दोनों में दोनों बार पूछा गया है. स्ट्रेस एंड स्ट्रेस आर सेकेंड ऑर्डर टेंसर. देन क्वेश्चन नंबर 81. तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका क्या होगा? ऑप्शन सी. इसको कैसे आप करेंगे? तो E इक्वल टू क्या होता है? 3 के दोनों रिलेशन से आप निकालेंगे तो E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू. दैट मीन्स आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं कि 2 म्यू इक्वल टू E बाई जी माइनस 2 और E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू. तो यहां पे भी लिख सकते हैं 2 म्यू इक्वल टू 1 माइनस E अपॉन 3K और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, है ना. जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो 1 माइनस E अपॉन 3K इक्वल टू E अपॉन G माइनस 2, है ना. तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू E अपॉन G प्लस E अपॉन 3K. इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E इक्वल टू, और इसको सोल्व करेंगे तो 9K G अपॉन 3K अपॉन G. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. In a static tension test of low carbon steel sample, the gauge length affects, है ना, that is the percentage elongation. Percentage elongation को affect करता है. A material of point principal stress sigma 1 sigma 2, if the elastic limit is 200 megapascal, the factor of safety in maximum shear stress, है ना. तो maximum shear stress में क्या होगा? तो आपका इसमें क्या होगा कि आपको इस केस के लिए हमको क्या करेंगे? जो भी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 और आइदर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाय 2, एनी वन ऑफ द मैक्सिमम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस अपॉन 2 टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो इस तीनों में अब 100 माइनस 20 तो 80 बाई 2 दैट इज 40, 20 माइनस 20 तो दैट इज 10, सिग्मा 30 ये आपका 100, है ना. ये आपका क्या हो गया? 100. दैट मीन्स ये 50. दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? मैक्सिमम हमारा जो हो रहा है 50. तो ये क्या हो जाएगी? 50 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो 50 चौका 2, यहां से 2, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 2. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी द यील्ड लोकस इज, है ना. तो रैंकिन होता है दैट इज स्क्वायर, है ना. द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेन गेज इन स्ट्रेन रोसेटर, है ना. स्ट्रेन रोसेटर में कितना होना चाहिए मिनिमम? दैट इज 3. स्ट्रेन रोसेटर में मिनिमम जो है हमारा 3 होना चाहिए. देन इन ए 3D state of stress, the number of independent component required to define a state of stress is, that is 6. तो 3 क्या होगा आपको? नॉर्मल स्ट्रेस और 3 जो है हमारा shear stress. At a point it biaxially loaded, principal stress found to 60 and 80 megapascal, the critical stress of material is 240, then what is the factor of safety? तो अगेन हमने सेम क्वेश्चन किया. तो उसमें आपको क्या करना है कि आपका जिसमें आपको मैक्सिमम ये मिले तो दैट मीन्स आपको क्या होगा? 80 बाई 2 इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. 2 कैंसिल आउट, 8 दिया 24, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी? दैट इज 3. ऑप्शन बी इज करेक्ट.
द रेडियस ऑफ मोर सर्कल इज, तो आपका इसमें क्या होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. देन प्रिंसिपल स्ट्रेन ऑफ दिस एंड दिस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, है ना. तो इसका एक फॉर्मूला है कि आपका क्या है, और आइदर इसको लिए भी लिख सकते हैं कि गामा मैक्स, है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय 2. तो इसलिए क्या होगा, एप्सिलॉन मैक्स जो है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, और ये आपका माइनस में है तो 100 प्लस 6 दैट इज 1600. The Morse circle construction is valid both stress as well as area moment because both are second order tensor. Both are second order tensor quantity. The principal stress sigma 1, sigma 2, sigma 3 are these. The maximum shear stress is. तो इसमें हमारा क्या होगा, जो मैक्सिमम किस में होगा तो 60 हो जाएगी. क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या निकालेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 और आइदर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 और आइदर सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2. विच वन इज द मैक्सिमम, है ना, इक्वल टू टाउ मैक्स, है ना. इसको क्या लिखते हैं, टाउ मैक्स. तो आपका क्या है 91 का क्या हो जाएगा, ए. More circle can be used to determine following a stress on inclined surface. तो नॉर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, टेंजेंशियल, ऑल ऑफ दिस सभी स्ट्रेस हम फाइंड आउट करते हैं. A tension member is cross sectional area is 30 mm, resist the load 60. The maximum normal stress and maximum principal shear stress पूछ रहा है ना. तो आपका देखिए नॉर्मल स्ट्रेस यदि बात करेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगी आपका इस केस में क्या है 60 अपॉन, है ना, 60 अपॉन 30 दैट इज 2 एंड टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी सिग्मा 1 बाई 2 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. In Morse circle of a state of a stress becomes a point, the stress is identical on principal stress. In a stressed field, the change in angle between two initially perpendicular line is called, है ना, यदि दो ये है तो उसको क्या बोलते हैं, shear strain. Then reaction A and B, तो रिएक्शन A and B को करने के लिए क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम ये लोड को शिफ्ट करेंगे. ये बी पॉइंट हो गई, ये ए हो गया, यहां पे सी पॉइंट, तो सी पे हमारा लोड जो है आपका 5 किलो न्यूटन लग रही है और यहां पे आपका डी है और साथ में क्या है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लग जाएगी 5 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना. तो अब हमारा क्या है रिएक्शन फोर्स, तो क्या हो जाएगी आर ए प्लस आर बी. ये क्या है ए है, सी डी बी, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या होगा 5. अब मोमेंट अबाउट क्या लिखते हैं ए, है ना, मोमेंट अबाउट ए यदि लेते हैं तो क्या हो जाएगा आर बी इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू ये कितना है, दो डिस्टेंस है, यहाँ 1 है, ये 2 है, तो 5 इंटू 2 प्लस 5 ऑलरेडी लग रही है तो कितना हो गया दैट इज 15. दैट मीन्स आर बी इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन. तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 किलो न्यूटन. तो आपका ये है ना, इसमें हम ऑप्शन डालना पड़ेगा. देन टू बीम ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया आर सब्जेक्टेड टू इक्वल बेंडिंग मोमेंट. इफ वन beam has a square cross section then circular cross section and other one is circular, तो circular will be stronger, है ना. ये क्या हो जाएगा सर्कुलर स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होता है जो बेंडिंग स्ट्रेस, तो आपका पोलर मोमेंट, तो ये जो है जेड स्क्वायर जो होता है ना, वो क्या होता है 1.18 टाइम्स ऑफ जेड सर्कुलर. और यहाँ पे पूछ रहा है कि टू इक्वल स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट, तो क्या होगा if two equal cross section subjected to equal bending moment, so that is sigma b is directly proportional to 1 by z, है ना. ये क्या होता है सिग्मा 1 by z होता है. तो स्क्वायर का ये क्या है, ये ज्यादा है, दैट इज आपका
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस तरह से हमने टोटल 97 क्वेश्चन सोल्व किए। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपको ये वीडियो और ऑब्जेक्टिव सीरीज पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।